हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में विवेक गुप्ता जी हैं जिनकी जर्नी के बारे में हम आज समझेंगे। ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मैं इन स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि इन्होंने फाइनेंस में बहुत अच्छा किया है। एज ए सीए जर्नी बहुत अच्छा किया है। इन्होंने सीएफए भी एग्ज़ाम क्लियर किया और आज जो वर्क प्रोफाइल भी इनका है वो भी फाइनेंस से रिलेटेड है। तो हम इनके साथ 3 सेशन में बात करने वाले हैं। पहला ये सेशन हम एज ए सीए स्टूडेंट्स इनकी जर्नी जानेंगे, एंड देन नेक्स्ट हमारा रहेगा एज ए सीएफए, एंड देन हमारा रहेगा एज अ वर्क प्रोफाइल, ये कितना कमाल कर रहे हैं। तो हम 3 अलग अलग पार्ट्स में ये वीडियो बनाने वाले हैं। पहला पार्ट एज ए सीए जर्नी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको एसएफएम में इतने अच्छे मार्क्स 83% मार्क्स कैसे आए? आपने क्या तैयारी की? कब मेरी आपने क्लासेस करी? आपको इतना इंटरेस्ट कैसे आया सब्जेक्ट में? 83% मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना होगा? क्योंकि आप एक रोल मॉडल हो, आप उनको गाइड कर सकते हो। प्लीज़ पूरी बात बताएं। जी, thank you so much for the great introduction, sir. So, guys, I am Vivek Gupta. I have cleared CA in May 23. I have cleared CFA level 3 in Feb 24, and currently I am working in a finance company. It is basically a financial services company dealing in wealth management and deal advisory. So SFM में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए 83 because of sir, because I took his classes, and also my background because of my CFA journey. So basically it all started from my school where the school sent me for a competition in mock stock competition in finance or in stock market. So basically my interest kind of developed there. Then I started my college along with CA CPT and CA Inter. I cleared during my college, and also I participated and won many finance competitions during my college journey. So basically my interest got developed more and more towards stock market and finance. So I started my opened my demat account, started trading in stocks, future and options, also cryptocurrencies also. I basically like wanted to experience everything, so I did. So then my articleship started in July 2020. Along with that, I started sir's classes during COVID. सो सर की मैंने वर्चुअल क्लासेस ली थी, लेकिन सर जो भी जितना भी सर ने पढ़ाया, जैसे भी पढ़ाया, सर हर क्लास के बाद एक 10 से 15 मिनट का स्टॉक मार्केट का एक लेक्चर देते थे। एंड उसमें जो लर्निंग सर ने करवाई हमें, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हमें इंफॉर्मेशन दी, उससे मैंने बहुत सीखा, उसको मैंने अप्लाई किया, एंड आई मेड अ लिटिल प्रॉफिट्स फ्रॉम द स्मॉल कैपिटल दैट आई हैव डिप्लॉयड इन माई डीमैट। एंड ऑल्सो सर का पढ़ाया हुआ सारा मेरे CFA लेवल 1 में बहुत काम आया, बिकॉज 50 to 60% ऑफ द सिलेबस इज सेम एज इन SFM एंड CFA लेवल 1। एंड सर ने जो भी पढ़ाया वो बहुत डीप में समझाया था। सो मेरे को कोई इशू नहीं आया CFA लेवल 1 क्रैक करने में। आई स्कोर्ड अबव 90 परसेंटाइल ग्लोबली इन CFA लेवल 1 in November 21. Then I registered for CFA level 2 in August 22, and because I took coaching classes, and also because of sir's understanding, and I also used sir's notes also in level 2 also, and then I cleared my CFA level 2, also scored above 90 percentile globally in CFA level 2 in August 22. Then I cleared my CA group 1 in November 22, and I scored SF in 83 in SFM, because I had sir's summary notes, I had sir's formula chalisa, as you say. Yeah. I used all those and I scored 83 very easily. And but you all have to remember how to study SFM. It is basically go through sir's notes 2 to 3 times at least, all the concepts, and write every question there is in the study mat in sir's important question list. I wrote every question. I took 7 to 8 days and I write every question with hand of the study mat and sir's important questions. So that all that helped me to score 83 in SFM. तो आपके SFM में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और आप CFA भी आपने क्लियर किया, तो इज इट मैनेजेबल कि CA के साथ CFA हो सकता है? आप एट द टाइम आप CA फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, उससे पहले आप एक लेवल अपना क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल सर। या आपने 2 लेवल क्लियर किया? आई क्लियर 2 मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप CA फाइनल में बैठ रहे हैं, हाँ, उसके पहले अगर आप सही प्लानिंग करें, right, तो आप 2 लेवल तक आपका CFA क्लियर हो सकता है। एग्जैक्टली, एम आई राइट? एग्जैक्टली। चलो, ये हम लोग एक सही गाइडेंस दे पा रहे हैं बच्चों को। और आफ्टर क्लियरिंग योर CA आप एक 3rd लेवल आप दे सकते हैं। यस, फाइन, वेरी गुड। और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि
जैसे आपने कहा कि मेरा बचपन से इंटरेस्ट था कि मैं फाइनेंस में अपना करियर बनाऊं, तो क्या एक इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है स्टूडेंट्स के मार्क्स में भी? क्योंकि आपको कैसे पता चले कि एसएफएम में आपके हाईएस्ट आएंगे? और आप, क्योंकि आपका इंटरेस्ट था, आप पढ़ रहे थे तो आपको मजा आ रहा था। और जो आपने कहा क्लास में भी जब हम प्रैक्टिकल सेशंस लेते थे आप सारा अटेंड करते थे? यस यस, एवरी टाइम सर। और आप एंजॉय करते थे? बिल्कुल सर, दैट्स द ओनली पर्पस। इफ यू आर एंजॉयिंग यू विल स्कोर गुड, यू विल डू दैट। यू हैव टू सिलेक्ट दैट फील्ड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आप पैदा कर लीजिए। बिल्कुल। सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली पढ़िए, ऊपर से मत पढ़िए। Exactly. आप अपने आप मार्क्स लेकर आएंगे। और जहां आपका इंटरेस्ट नहीं है आप दिन रात एक कर दीजिए। जैसे बहुत लोगों को ऑडिट में नहीं होता है, जिनको होता है आई रेस्पेक्ट दैट, बट जिनको नहीं होता माय केस आल्सो, हाँ, तो उनको 40s लाना भी मुश्किल हो जाता है। राइट। इस बार बहुत सारे ऐसे पेपर थे जहां पे बच्चों का एसएफएम एएफएम में 94%, 80%, 88% और ऑडिट एंड अकाउंट से 40%, मतलब 2 से भी ज्यादा मार्क्स हमारे एसएफएम एएफएम में आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इंटरेस्ट। आपको एक सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है, इसका मतलब आप सीए बन गए, क्योंकि आप एग्रीगेट निकाल देगा वो। यस। तो विवेक गुप्ता जी, और बहुत सारी बातें करनी है। अभी हम एक सेशन आपके साथ सीएफए के लिए भी रखेंगे, और एक सेशन आपके साथ हम आपके वर्क लाइफ के बारे में जानेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे इनके साथ, क्या सीए, सीएमए और प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ क्या सीएफए जैसा डिग्री हो सकता है? आपने क्यों सोचा सीएफए करने का, और आपको क्या दिक्कतें आई, और कैसे आपने उस हर्डल को क्रॉस किया, वो भी हम समझेंगे। एंड देन फिर हम अपने वर्क लाइफ समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जो ये वीडियो सीए के लिए था, सीए क्वालिफाइड जिन्होंने एसएफएम में हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किया, और आज वो एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो सीए स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और पढ़ाई का मन नहीं लगता, उनके लिए आप एक लाइन बोल दीजिए जो उनको लगे कि हाँ, ये लाइन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर पाऊंगा इस लाइन के वजह। तो आप सभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है, आप ये सोचिए कि आपको ख़त्म करना है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, यहाँ पे अटके नहीं रहना। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, मई के बाद नवंबर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप एक बार अच्छे से जान लगा दीजिए, अपना 100% दीजिए, एंड एंड तक कभी उम्मीद मत छोड़िएगा। क्योंकि कोई भी पेपर अगर आप नहीं लिखते तो कुछ नहीं होगा, आप फेल होंगे। लेकिन अगर आप उसको लिख के भी आते हैं, चाहे आपका बाकी नहीं गया हो सही, लेकिन अगर एक में भी आपके अच्छे आ जाते हैं तो आपको बहुत चांस रहते हैं कि ग्रुप क्लियर हो जाए। बहुत चांस, अब तो 6 पेपर हैं। एग्जैक्टली। तो और चांसेस बढ़ गया ना, बहुत चांस बढ़ गए। एक स्टूडेंट से बात हो रहा था, मोनिका महेश्वरी, उनका इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में जी। अकाउंट्स में 40 में मार्क्स थे, शी वाज रेडी कि नहीं, हमें जो नहीं देना है, पेपर नहीं देना। बट एनी हाउ जब उन्होंने एसएफए उठाया, बोले यार ये तो बड़ा सर ने आसानी से पढ़ाया है, आराम से रिवाइज हो रहा है। तो रिवाइज करते 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 पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया। एग्जाम में बैठी 88%, 83% मार्क्स थे उनके, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ऑडिट में अगेन 40 मार्क्स, बट उनका ग्रुप क्लियर, एंड आईडीटी में 40 मार्क्स। हाँ। तो पूरा एएफएम पूरा मदद कर दिया उसको, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भी थोड़ी मदद मिली होगी। In my case also, my audit was 40 and my SFM was 83. Because of that, I cleared my group. Accounts was good, 59 or 60, I guess. Yeah. चलो। Yeah. तो आप लोग हिम्मत मत हारिए। एंड तक कभी भी आप छोड़िएगा मत, पूरा लिख के आइए। लगे रहिए। कुछ नहीं आता है, क्वेश्चन से बना के कुछ भी लिखिए, क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी है, एक ना एक बार जिंदगी में पढ़ी है, उसको लिख के आइए। छोड़ना नहीं है, कभी नहीं। लगे रहिए, यही मंत्र है, विवेक जी से मिल रहा है, और आई थिंक ये सबसे अच्छा मंत्र है। सीए स्टूडेंट्स के लिए तो यही मंत्र काम आता है। लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, एक झटके में आपका हो जाएगा अगर आप इस एटीट्यूड से करेंगे। बिल्कुल, रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आपके सामने। चलिए हम आप सीएफए के लिए आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जिनको सीएफए करना है, जिनको अपनी लाइफ में और आगे हायर एजुकेशन करना है, एक ऐसा कोर्स करना है जो वर्ल्ड का रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, तो प्लीज सेकंड पार्ट जरूर देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। बाय गाइस।